So, good evening, friends. Welcome to Equity Question, Tracks and Trading. Today is a day one. We will start with the scratch, and everyone know me because you are already associated with me from today, day one. I am Suhas Fruitwala. In equity market since 2005, I was working in a pharma, 16 years of pharma job. I have started with medical representative, then area manager, then regional sales manager. I was covering almost 80% of the Gujarat when I left the job. And after 16 years of pharma, I learned many things. In between, I learned equity market also. And after 16 years, I have left the job in 2016 and completely dedicated to the equity market from 2016. So after 4 years of successful training, mentoring, own trading, portfolio managing, and all these things, I'm in front of you. Right, sir? So whatever you are getting, not only for the last 4 years, but whatever I learned from last 2000, almost 15 years, you will going to learn everything whatever I am gaining. So आपका हर सवाल मेरे लिए important है सर. आप जितना पूछेंगे उतना पाएंगे because my training is not scripted at all. मुझे क्या सिखाना है वो मुझे पता है. बट कितना डीप में जाना है, कितना एलोबरेट करना है, कितना ज्यादा एक्सपांड करना है, वो आपके सवाल ही मुझे बताएंगे. एंड आई डोंट माइंड. ये 10 दिन की ट्रेनिंग होती है सर मेरी, और आज डे वन है. लास्ट ट्रेनिंग 15 दिन तक चली थी. राइट सर? तो माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि ट्रेनिंग खत्म करो 10 दिन में. नो, 15 दिन भी लगते तो आई डोंट माइंड, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव टू टीच यू, टू मेक यू ट्रेड, टू मेक यू इन्वेस्ट, टू मेक यू अ पोजिशनल ट्रेडर. Not like only finishing the course. These are my objective. Right, sir? Right, friends? So whatever the question in your mind, just throw it on. There is some noise. तो जो भी सवाल हो मुझे इमीडिएटली पूछ लीजिए. जो सवाल पूछता है ना सर, उसको लगेगा कि यार के क्या पूछ रहा हूँ, तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही फुल दिखता है. जो नहीं पूछता है वो पूरे लाइफ के लिए फुल रह जाता है सर. तो आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन यू आर हैविंग. सर आज ट्रेनिंग खत्म होगी, दूसरे दिन थोड़ा आप रिवीजन करेंगे तो और सवाल आएंगे. और सर ट्रेनिंग के बीच में भी कहीं कोई भी सवाल हो, इमीडिएटली आस्क मी, इमीडिएटली स्टॉप मी. और चिंता मत करो, मेरी लिंक नहीं टूटेगी सर. हाँ, बिकॉज माई ट्रेनिंग इज नॉट स्क्रिप्टेड. और मैं 10-12 दिन की ट्रेनिंग इसलिए रखता हूँ कि 10-12 दिन में ऑलमोस्ट 2 वीक खत्म हो जाते हैं. तो 2 वीक में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रूड हो, गोल्ड, सिल्वर, यूएसडी, आईएनआर, एनीथिंग, सब अपने रंग दिखा देता है. जो कुछ भी मैं दिखाना चाहता हूँ ना कि मार्केट में हर रोज क्या हो रहा है, वो 10-12 दिन में ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है. और जो कवर नहीं होगा वो हम लाइव मार्केट में कवर करेंगे बाद में. विद 10-12 दिन की ट्रेनिंग के बाद आई विल एड यू इन माई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जहां मैं पूरे दिन लाइव रहता हूं. और उस ग्रुप का नाम ही लाइव ही है, क्योंकि मैं सुबह 9 से रात को 11 साढ़े 11 बजे तक लाइव रहता हूँ. पूरे दिन में निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, शाम को मैं क्रूड में ट्रेडिंग करता हूँ. बट स्टूडेंट्स के चार्ट, मेरे चार्ट पूरे दिन आते ही रहते. आप सवाल पूछो कि ना पूछो, मेरा एनालिसिस वहां शेयर होता ही है. देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट, वो भी अपना एनालिसिस शेयर करते हैं. राइट फ्रेंड्स? तो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इन दिस मार्केट सर. अभी प्रभाकरण जी, आपका सवाल क्या था? कैन यू रिपीट इट? My question was simple, sir. From past a few months, we are battling COVID. Yes, sir. Yes. Also, we have tensions with China, Yes, sir. Pakistan, and now we have farmers unrest. Hmm. And I don't see any positive situation in the country. I Hmm. mean, as far as the economic conditions were concerned, I'm Hmm. not speaking about the market. Hmm. Still, the market was able to sustain at higher levels. And from the lows it made around 7,600 something, it had recovered completely. That was 100% retracement. And on top of that, market was making all-time highs. Yes. So that was something I mean, I didn't think it is going to happen initially.
And on top of that, the surprising thing was it was sustaining at higher levels. Yeah. As soon as I think the market was coming down, the next day it was going up. That thing, I'm not sure why it was happening. ओके, तो ओके सर, तो कोई आपका क्वेश्चन है मार्केट ऊपर क्यों बढ़ रहा है, इकोनॉमी रिकवर नहीं हो रही है, कोविड से रिकवरी नहीं आ रही सर, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? तो पॉइंट नंबर 1, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग इन वेल एडवांस। बराबर है सर, कुछ अच्छी चीज आने वाली हो, मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। मींस मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी आफ्टर कोरोना, ऑल द रिकवरी एंड देन, तो मार्केट अभी एक्सपेक्टेशन में ऊपर जा रहा है। एक्सपेक्टेशन नंबर 1 कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड इकोनॉमी विल बी ऑन द ट्रैक आफ्टर कोविड। पॉइंट नंबर 2, अर्निंग इंप्रूव होगी क्योंकि अभी बहुत बुरे रिजल्ट आए हैं कई कंपनियों के इन लास्ट क्वार्टर, तो अभी जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे एंड इट विल बी इम्प्रूव ऑन दैट साइड। अभी आप लोगों को पता हो जब भी सर कोई इकोनॉमी पेन में होती है ना सर, फर्स्ट थिंग विल बी इम्पैक्टेड दैट इज अ बैंकिंग एंड सेकंड विल बी ऑटो, बाकी सब सेक्टर बाद में आते हैं। सिमिलरली कोई भी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो फर्स्ट विल बी ऑन अ टारगेट दैट इज बैंकिंग, क्योंकि पैसा आएगा, and second will be auto, but this time you can see auto ने लीड किया और auto started running, और आप लोगों ने दिवाली के बाद के जो डेटा देखे होंगे auto numbers, they are fabulous. Yes, people started wanting their own vehicles because of this COVID situation. That has boosted the auto sales. मीन्स पैसा तो है सर, है ना, मार्केट में पैसा तो है। Yeah, that's for sure. हाँ, मीन्स पहले तो इतना बुरा था, तो अभी जो गेन हुआ इट्स क्लियरली शो के इकोनॉमी इज गोइंग टू बैक टू ऑन द ट्रैक, तो ऑटो ने रिफ्लेक्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 2, सर निफ्टी, एक तो चीज इकोनॉमी रिकवर होने की एक्सपेक्टेशन है, दूसरी चीज वैक्सीन की एक्सपेक्टेशन है। अगर वैक्सीन आ गया सक्सेसफुल, उसका सब कुछ हो गया, तो एवरीवन थिंक कि भाई अब सब कुछ सही होगा, तो यू कैन सी सम स्टॉक। अब आप मुझे बताइए कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ इन कोविड में, कोई बताइए। फार्मा नहीं, फार्मा को तो फायदा हुआ सर। I mean, I am what I'm saying is in the impact in the sense the growth I was seeing. Yeah. तो देखो सर, जो सेक्टर 2 साल से 3 साल से आई कैन से 4 साल से पैनिक में था, वो 52 वीक हाई पे आ गया सर। Also the other positive sector was FMCG, I guess. आपकी बहुत वॉइस है, जो भी हो आई डोंट नो हु इज, बट बहुत वॉइस है आपके बैकग्राउंड में सर, प्लीज चूज पीसफुल प्लेस और चेंज योर सेटअप। हाँ प्रभाकरण जी बोलिए। Even though there was a COVID situation, we couldn't stop consuming HUL, ITC, and Colgate toothpaste. These are the things we can't stop using, irrespective of whatever the situation. So that was the other sector which didn't get any impact, I guess. Hotel. I mean, maybe. Sir, FMCG is a very liquid sector. हाँ, आज FMCG ने ऑल टाइम हाई लगाया सर, और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे इन FMCG, इट यूज्ड टू बी हाई, हमेशा ऊपर रहता है सर मार्केट का, हमेशा आपको FMCG स्टॉक कॉस्टली लगेंगे। ये देखिए ऑल टाइम हाई लगा दिया है सर निफ्टी ने, निफ्टी FMCG ने। इसमें से HUL नियर ऑल टाइम हाई है, नेस्ले ऑल टाइम हाई के नजदीक है, टाटा कंज्यूमर ऑल टाइम हाई के नजदीक है, तो दिस ऑल स्टॉक मेड अ 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई, तो दिस द हाईएस्ट लिक्विडिटी कैरिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ। और ये एवरग्रीन है सर, पहले फार्मा एवरग्रीन हुआ करता था, बट FMCG वाज अ एवरग्रीन स्टॉक, राइट सर? यस सर। और तो मार्केट ऑलवेज ऑन एक्सपेक्टेशन कि आगे क्या होने, अगर बुरा न्यूज आएगा तो मार्केट पहले गिरेगा, अच्छा न्यूज आएगा तो मार्केट पहले भागेगा कि चलो रह गए टाइप ऑफ सिचुएशन। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू, अगर आप लोगों ने मेरा संडे का वेबिनार देखा होगा तो मेरा एक सवाल है सर, मार्केट को कौन चलाता है सर? इतना पैसा मार्केट में कौन डाल रहा है, कौन चला रहा है सर मार्केट को?
I would say mutual funds यस, म्यूचुअल फंड्स, HNI, HNIs और and foreign institutional investors, FII और domestic institutional investors, PII और राइट, योर आंसर आर राइट. and Yeah. the smart money. स्मार्ट, ये सभी स्मार्ट मनी है जो मार्केट में पैसे पंप कर रही है. राइट सर. तो आप सोचोगे कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज सिंपली स्मार्ट मनी इज बाइंग. स्मार्ट मनी इज कैरिंग ऑप्टिमिज्म और स्मार्ट मनी इज हैविंग सम प्लान to pump the Sir, money in the market. Every promoter is buying the stock. That's the plus point. हाँ, In this COVID situation. हाँ, प्रमोटर सर बाय करता है, इट्स अ गुड. अगर अच्छी कंपनी है इट्स अ गुड, बट समटाइम इट्स समथिंग फिशी आल्सो. हाँ सर. Yeah, just like Ruchi Soya. हाँ, अभी सर रिलायंस में कोई बाय करेगा देन वी कैन टेक इट पॉजिटिव, है ना सर. Yeah. बट कोई छोटी कंपनी है लाइक 3i इंफोटेक और सीनकॉन फॉर्मुलेशन जिस जो पेनी में है और उसका प्रमोटर बाय करता है, तो वी हैव सम डाउट्स ना. तो ऑलवेज यूज टू कोरिलेट विद द थिंग कि सर प्रमोटर बाय कर रहा है मींस जनरली ओवरऑल लुकआउट क्या है कि भाई प्रमोटर बाय कर रहा है मींस promoter is always optimistic on his company and he is having plan. Yeah. Right sir, for a future prospect or any growth prospect or profit and everything. Right. So it's always good. अगर अच्छी कंपनी है प्रमोटर बाय करा तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. राइट सर. प्रभाकरन जी. Yes sir, yes sir. मार्केट इज रन बाय स्मार्ट मनी. अभी सिंपल एग्जांपल में बताऊं सर आपको. 31 सितंबर से एक नया रूल आया मार्केट में. क्या रूल आया सर? Yeah, that SEBI no margin rules, I guess. हाँ, मार्केट को गिरना चाहिए, लॉजिकली गिरना चाहिए ना सर. Yes. Yes sir. May I know? I have another question on that. हाँ, I see everyone losing. The हाँ, investors losing. हाँ, Broking houses losing. yes, Taxis losing. I yes, don't see anything positive by implementing these rules, but still it was implemented, and even after multiple people complaining and some people going to high courts as well, there's some brokerage houses, still yes. SEBI is not going back and standing firm on their decision. सर ये पहले तो डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन हुआ ऑन अ ब्रोकिंग लेवल्स. देयर आर सो मेनी नेम्स आर देयर, गुड नेम्स, दे आर कम इन अ लिस्ट ऑफ बैड्स because of their all the fishy things they have done, manipulation they have done from the money of the clients. Right sir. तो उसी वजह से डिसीजन लिया गया. ऑफ कोर्स ये डिसीजन बुरा है फॉर रिटेलर, बट सर फिर भी मार्केट क्यों नहीं गिरा? मेरा सवाल ये है सर. Market was already expecting that, I guess. Maybe it was discounted before. नो सर, सिंपल सर. सर मार्जिन रूल अप्लाई करवा दिया क्योंकि मार्जिन सबको मिल गया डीमेट के होल्डिंग के हिसाब से. हाँ, वो पोजिशनल के लिए मिला. पोजिशनल के लिए मिल गया. आप इंट्राडे में भी उसको वर्कआउट कर सकते हो. हाँ, इंट्राडे में 25% मैंडेटरी हो गया सर अभी. यस, तो आपका होल्डिंग है तो आप उसको प्लेस कर दिए. आप प्लेस किए तो वहां पे भी उनको बेनिफिट मिल रहा है. अभी दूसरी बात ये है सर, सिंपल थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ दिस बैड रूल्स मार्केट इज रन बाय स्मार्ट मनी. स्मार्ट मनी को ऐसे डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दे आर कैरिंग ह्यूज लिक्विडिटी. इसी वजह से दे आर कैरिंग सो मच बाइंग एंड सेलिंग. So I also heard some news. It was I heard that around 50% of the volume has been decreased in the first week right after the announcement of these rules. I mean in December. राइट सर. बट कहाँ मार्केट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर. मार्केट इज स्टिल गोइंग अप. Sir, in order to take money from someone, firstly you need money, right? Without the retailer's participation, if more people join, means you get more money. You need someone to give you money before. See, if you want to take money, you need to take it from someone. So if there was no liquidity, from where they will get, and how, even after pumping, there was a certain limit, right? They can't pump all the money and expect. They are pumping सर. आप सोच रहे हो क्या सिर्फ रिटेलर ही यूज करता है क्या? अभी सर DIA प्रॉफिट बुक कर रहा है सर. हाँ? सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है. DIA प्रॉफिट F2 परचेज कर रहा है और D2 सेल कर रहा है. अभी देर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना सर.
मीन्स हमारे म्यूचुअल फंड हो या LIC हो या डोमेस्टिक बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, दे आर बुकिंग प्रॉफिट एंड FIR continuously buying, sir. Everyone has their own trade plan, own game plan to be profit in the market, right sir? तो हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट मनी वन डायरेक्शन में काम करता है, नहीं, उनके बीच में ही बैटल अभी दिख रहा है सर, क्लियर कट FI and DI, है ना? और बराबर दिखता है सर। हाँ, अभी मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, जब मैं मार्केट में नया नया था, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इतने एक्सपोज नहीं हो रहे थे, तब सर FII रूलिंग द मार्केट, FII बाय करता, मार्केट ऊपर चल। अभी ऐसा नहीं है सर, वी हैव गॉट सम स्टैंड इन द मार्केट थ्रू अवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, LIC है, म्यूचुअल फंड्स है, राइट सर? तो वो लोग अभी FII को इतना रूल करने दी नहीं, दो इट्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस FII इज अ बिग बॉस, हाँ, वो चाहे उतना पैसा मार्केट में डाल रही है अभी यू कैन सी सो मेनी थाउजेंड्स मनी आर देयर। तो सिंपली थिंग इज दैट मार्केट इज रन बाय स्मार्ट मनी। तो अगर मार्केट को जज करना है तो रिटेलर के प्रोस्पेक्टिव से कम देखो, स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से देखो। दिस अ डे वन रूल फ्रॉम माय। स्मार्ट मनी का वजह से कैसे देखेंगे सर, वो तो पता ही नहीं चलेगा। वही तो 10 दिन लगेंगे सर। स्मार्ट मनी कहाँ से बाय करता है, स्मार्ट मनी कहाँ से सेल कर रहे हैं, बस उसी के ऊपर फोकस करो, बिकॉज दे आर रूलिंग द मार्केट। आप सोचोगे रिटेलर प्रॉफिट बुक करेगा, रिटेलर बाय करेगा, तो डजंट मेक एनी इंपैक्ट इन द मार्केट। सर रिटेल का कोई हिसाब से अगर देखेंगे तो कोई औकात ही नहीं है। हाँ, एकदम फ्रैंकली बात कर रहा हूँ सर। हमारे जैसे 100 लोग निफ्टी बाय करेंगे, निफ्टी ऊपर जाने वाला नहीं है ना, एकदम नहीं है सर। नेचुरल चीज है। ये जो निफ्टी आज भी ऊपर गया है, दिस आर ऑल थैंक्स टू स्मार्ट मनी। डाउन गया, गैप फिल किया और स्मार्ट मनी की वजह से ऊपर गया है सर। आप चार्ट के अंदर कैसे पकड़ते हो सर कि कब लेना और कब बेचना है? सर वही तो सीखने वाले हैं 10 दिन में, राइट सर? तो डोंट वरी, अभी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ऑनलाइन। अभी मुझे ये जानना है आप में से कितने लोग मार्केट में नए हैं, लाइक न्यू, एकदम नए, जिनको कैंडल स्टिक भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। सर मैं सर संतोष जी, राइट सर? हाँ सर। और डोंट वरी सर, आज मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूंगा, राइट सर? हाँ। अभी देखो सर, मार्केट में प्राची मैम, यू कैन, आप बिंदास बोलिए मैम, डोंट वरी। हाँ, वुमन एम्पावरमेंट है, डोंट वरी मैम। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन डिस्कस विथ मी एनीथिंग, एंड women are leading. There are so many women student I am having in my student group, and they are doing excellent job. हाँ, and कई है clients group में भी है, they are doing excellent job. ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। You can ask me, you can discuss with me like anything. सर मैं फैसल। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे भी कैंडल स्टिक नहीं पता है। हाँ, डेफिनेटली। तो मैं डेफिनेटली अभी आपको उसी से शुरू करने वाला हूँ। सर देखिए, मार्केट में 3 तरह से काम होता है। हाँ, मार्केट में 3 तरह से काम होता है, राइट? तरीका नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस, मींस व्हाट इज राइट टू बाय। कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर में क्या करने वाला है, फ्यूचर गाइडलाइन क्या है, उसकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड क्या कर रही है, वो सेक्टर क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट है। सिंपल सर, अगर मुझे किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मैं देखूंगा कि भाई अभी का परफॉर्मेंस क्या है, 5 साल में क्या हुआ, कितना एक्सपांशन किया, डिविडेंड कितना दिया, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है, वो सब चीजें मैं देखूंगा। उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बट इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट। अगर मुझे एशियन पेंट्स का एनालिसिस करना होगा तो मुझे क्रूड का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी रॉ मटेरियल कमिंग फ्रॉम क्रूड। तो क्रूड की प्राइस ऊपर जाएगी तो एशियन पेंट्स को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा, उसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। अभी देखो क्रूड कहां से कहां आ गया, एशियन पेंट्स 52 वीक हाई पर है, पर इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, वो 52 वीक हाई लगाएगा।
बट इट विल वर्क एज अ बूस्टर कि भाई इसका रॉ मटेरियल सस्ता आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है सर, है ना। सुभाष भाई बैलेंस शीट ये सब जो है ये मैनिपुलेशन भी तो करके बनाया जाता है जितनी भी कंपनी, बट वो ज्यादा टिकता नहीं है सर, कुछ ना कुछ। तो अभी देखो वो ज्यादा नहीं, अभी एक सिंपल चीज बताऊं सर, कोई कंपनी है ना, तो हाउ कैन वी जज कि फंडामेंटल अगर बैलेंस शीट से देख के करे तो? हाँ वो भी कर सकते हैं सर, बट देयर आर सो मेनी थिंग इन द फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हमको फोकस करना है टेक्निकल एनालिसिस पर। दैट्स द पॉइंट, राइट सर। तो सही है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब। अगर सिंपल है सर, मुझे आईटी कंपनी इन्फोसिस बाय करनी है तो मुझे डॉलर के ऊपर ही वॉच करनी है। या सही है। क्यों? उनकी मैक्सिमम रेवेन्यू उनसे आती है, तो डॉलर बढ़ेगा तो उनको लॉस है, राइट सर। डॉलर नीचे आएगा तो उनको फायदा है, अरे डॉलर बढ़ेगा तो उनको फायदा है, वही है। और डॉलर नीचे आएगा तो उनको लॉस है। तो ये सब चीजों टाइम लगेगा लेकिन बैठ जाती है, सुनते जाऊंगा नहीं कर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है सर जो हम कॉप अप ही नहीं कर पाएंगे, मर्ज ही नहीं कर पाएंगे। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। कि आदमी को, ट्रेडर को तकलीफ आ रही है कि फंडामेंटल एनालिसिस नॉट इनफ टू कैच द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, तो उसी के लिए इन्वेंशन हुआ था टेक्निकल एनालिसिस का, कि भाई कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पता चले कि यहाँ से स्टॉक ऊपर उठेगा, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा। उसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, राइट सर। तो इन सिंपल टर्म्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टेक्निकल एनालिसिस। और अगर सिंपल टर्म्स में और बताओ तो कोई और बताएगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? बिकॉज सिंपली बेस्ड ऑन प्राइस, कि प्राइस क्या कह रही है, दिस इज सिंपल टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और किसी के दिमाग में कोई आइडिया कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? मुझे कोई हाई-फाई आंसर नहीं चाहिए, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम है, वो भी सही है कि भाई वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है। और कुछ सर मुझे जानना है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इन लेमन टर्म्स। मुझे कोई हाई-फाई आंसर नहीं चाहिए, आप टेक्निकल एनालिसिस को क्या समझ रहे हो वो मुझे जानना है, देन ओनली आई कैन मूव अहेड ना। टेक्निकल एनालिसिस क्या है सर? ग्राफ देख के बता रहे कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। परफेक्ट। और कुछ? चार्ट देख के बताना कि प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। और कुछ? Tracking the movements of price based on the historical price action. यस परफेक्ट। और अगर मैं आपके जवाब को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो क्या है पता है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, है ना। आगे जो हुआ वो वापस रिपीट होगा, यही टेक्निकल एनालिसिस है। Yes sir. उसके अलावा और कोई चीज नहीं है ना यहाँ। कि सर समझ लीजिए 1850 से रिलायंस पास्ट टाइम में बाउंस लिया था, वापिस इस टाइम 1850 के ऊपर से ही बाउंस लिया है सर। याद हो जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है उनको मैंने शेयर किया था, 1850 वाज द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ द रिलायंस, है ना। तो वापिस अभी 1850 के पास से ही बाउंस लिया है सर। अभी क्या बोल रहा है सर आपका रिलायंस? अभी बुल है सर। आई एम लुकिंग गुड पुल बैक इन रिलायंस विद द सपोर्ट ऑफ 1980 1850। अच्छा 1850। यस, जब यहाँ था ना 1850 के ऊपर गया था, इधर हियर आई हैव रिकमेंडेड नियर 1850, राइट सर। क्या कारण से वो मतलब आपको लगा? वही तो वो 10 दिन लगेंगे। डोंट बी हरी, मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा सर, चिंता मत करो। आप कितने भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, बट जो आंसर मुझे जिस दिन बताना होगा मैं उसी दिन सिखाऊंगा, राइट सर। सर आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं पहले तो जंप नहीं लगाऊंगा सर। मैं डे 1 को जो समझाना है वही समझाऊंगा, डे 9 को जो समझाना है वही समझाऊंगा। अगर मैं 2 स्टेप ऊपर कूद गया ना तो बीच वाले स्टेप आपको समझ में ही नहीं आएंगे सर। और अगर हम स्टेप मिस करते हैं तो क्या होता है पता है? सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सर 1 by 1, और बीच में 1-2 स्टेप मिस कर लिया तो जंप मारेंगे, चलो निकल भी जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी के गिरेंगे ना सर, और वापस आके नीचे आ जाएंगे स्टेप 1 पर।
राइट सर? तो Yes. डोंट नेवर बी हरी, अगर कुछ भी चीज सीखनी है ना कभी जल्दी मत करो सर। सीखने का काम एकदम ठंडे दिमाग से बैठे रहो सर, और एकदम बिंदास डिस्कस करोगे। जैसे ऐसे चल रहा है कि भाई इससे लाइक आप बोलते हैं ना सर, सर सचिन तेंदुलकर है, बराबर है सर, वो रिटायर्ड हो चुका है ना सर अभी तो। हाँ, मैं भी रिटायर, मैं भी मैच नहीं देखता हूँ सर, वो रिटायर होने नहीं, के बाद। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुका है। आपको क्या लगता है वो कभी क्रिकेट खेलता होगा? हाँ, क्यों? वो तो रिटायर हो चुका है, क्यों खेल रहा है? तो उसका वो पैशन है तो उसको बंद थोड़ी करेगा सर। बस, तो इसको भी पैशन बनाओ सर, है ना? पैशन तो बना चुका हूँ। हाँ, इसको पैशन बनाओ तो रिजल्ट मिलेंगे। आपने ऐसा सोचा कि भाई चलो सीखता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, तो बुरी मार्केट बुरा हाल करेगा सर, मान लो। हाँ, इसको पैशन बनाओ। पैसा अभी तक कमाया नहीं हूँ सर, बस हाँ, तो पैशन कोशिश में है। पहले इसको पैशन बनाओ। मैंने इसको पैशन बनाया। जब मैं सब सीख रहा था ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस। 15 साल पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सिखाऊंगा ऐसा, है ना? तो पैशन गिव्स मी वे। तो आवाज पैशन नहीं आ रही बनाओ। सर। हाँ, पैशन बनाओ। अगर और मैडनेस चाहिए सर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो। लोग सोचेंगे यार मार्केट में 95% पीपल आर लूजर्स, सही है सर, बट व्हाई आर वी फोकस ऑन 95%, व्हाई नॉट 5%? कि वो 5% क्या अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में है, राइट सर? हाँ, तो वो सोचो कि 5% ऐसा क्या कर रहे हैं भाई। अभी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल ले रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूं सर जिससे अच्छा ट्रेड मिल रहा है भाई? हाँ, क्योंकि मैंने अपना रास्ता चुना कि मुझे इस तरह अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आई शुड डू ट्रेड दिस वे एंड टीच द सेम वे। तो सिंपल, पैशन एज अ प्रोफेशन, पैशन, पेशेंस एंड प्रैक्टिस मेक। पैशन चाहिए सीखने के लिए, पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस पे अभी भी सर मैं हर रोज के 500 स्टॉक स्कैन करता हूँ। मुझे भले ट्रेड ना करना हो, मैं स्कैन करता हूँ एज अ पार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस, और वो मैं स्टूडेंट्स को दे देता हूँ या क्लाइंट्स को दे देता हूँ। मैं तो लेता ही नहीं, रेयरली लेता हूँ सर, राइट सर? सही। तो मैं मैक्सिमम पोजिशनल काम बहुत कम करता हूँ। निफ्टी में आई यूज्ड टू डू इंट्राडे, क्रूड में आई यूज्ड टू डू इंट्राडे। पोजिशनल करता हूँ भी थोड़ा बहुत, कैश में करता हूँ सर, एंड मेजरली आई यूज्ड टू पिक द सर स्टॉक। हाँ बोलिए सर। आई एम द रियल फैन ऑफ निफ्टी आपका। हाँ सर, वही चाहिए। जरूरी नहीं है सर आप 100 स्टॉक में काम करो। वन स्टॉक, वन इंडेक्स टू इनफ टू मेक योर लाइफ, राइट सर? बेस्ट फ्रेंड कितने होते हैं सर? बेस्ट फ्रेंड सर मिल जाए तो मुश्किल से एक ही होते हैं एक जो दो होते हैं ना, ज्यादा नहीं होते ना सर। हाँ, कोई बोलता है मेरे 10 बेस्ट फ्रेंड है सर, एक दो होंगे, है ना? तो बस वही करो सर। एक दो को, मेरे कई स्टूडेंट है सर, कोई बंदा गोल्ड में ही पूरे दिन पड़ा रहता है, कोई सिल्वर में पड़ा रहेगा, कोई यूएसडीआर में पड़ा रहेगा, कोई सर सिर्फ पूरे इन्फोसिस ही देखता है, कुछ देखता ही नहीं है सर, बस स्टिल ही इज गेटिंग ग्रेड, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया ना सर। उसकी मूवमेंट उसके दिमाग में बैठ जाती है। बस वही चीज है। आई विल टीच यू हर रोज 150-500 स्टॉक कैसे सेंड करने, वो भी मैं सिखाऊंगा, बट ऑटोमेटिकली आपका अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। बट एंड इट विल बाय डिफॉल्ट। आप अपने दोस्त चुनते हैं नो, इट बाय डिफॉल्ट ना, कि यार चलो इससे ज्यादा अच्छी जम रही है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि कौन आपका दोस्त बन जाएगा। वैसा ही स्टॉक का है, इंडेक्स का है, आपको ही पता नहीं चलेगा कि मैं यार इसमें इतना रेगुलर कैसे काम कर रहा हूँ। वो बाय डिफॉल्ट होता है, राइट सर? नॉट बाय चॉइस, बाय डिफॉल्ट। ओके सर, लेट्स मूव अहेड। तो इसमें आज के स्टूडेंट्स ग्रुप में बहुत से लोग नए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच। हम बेसिकली फोकस करेंगे टेक्निक ऐसे, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, बट कैंडलस्टिक के अलावा कुछ और चीजें भी है जिसको हमको सीखना जरूरी है। जनरली टेक्निक एनालिसिस में सबसे सिंपलेस्ट थिंग है लाइन चार्ट, राइट सर? लाइन चार्ट है सर, जिसमें अगर आपको स्कूल में पता है सर, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हम ग्राफ बनाते थे। मंडे को 5 किलो गेहूं बिका, ट्यूसडे को 10 किलो, वेडनेसडे को 7 किलो, और उनके डॉट्स मिला के लाइंस बनाते थे ना सर, एक्स और वाई एक्सिस पे। बस ये वही है, बट इधर निफ्टी का क्लोजिंग है।
निफ्टी के क्लोजिंग को मिला के डॉट बनाया है सर। अगर अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाता है तो ग्रीन बनता है, प्रीवियस क्लोज के नीचे रहता है तो रेड बनता है। सिंपल एंड सिली, राइट सर? यस। बट इसके ऊपर हाँ चार्ट पैटर्न ढूंढनी है, ट्रेंड ढूंढता है, तो लाइन चार्ट्स आर गुड। बट पूरे दिन मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स आया, क्या वॉलेटिलिटी आई, क्या खिचड़ी पकी, वो इसमें पता नहीं चलता ना सर, नहीं पता चलता ना। उसी की वजह से कैंडलस्टिक चार्ट इज अ मोर कन्वीनियंट टू डील विथ इट। पता चलता है क्या हुआ सर, आज क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ, ये कैंडल क्या कह रही है सर? नीचे गया और वापस ऊपर आया सर, राइट सर? Bullishness. हाँ, कैंडलस्टिक कैसे बनती है अभी मैं आपको समझाता हूँ सर। समझ लीजिए कोई स्टॉक ओपन हो रहा है 100। ग्लैडमैन फर्मा का लीजिए ना आज। एक मिनट समझाता हूँ सर, अभी बेसिक है सर। समझ लीजिए स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ सर। अगर वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा ना तो ग्रीन फॉर्म करेगा, और हाई और लो का पूछ बनेगा और बाकी की बॉडी बनेगी। और स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस जब ऊपर जाएगा ना तब ग्रीन बनेगा। हाँ सर, हाँ ठीक है। लेकिन जब नीचे आएगा रेड हो जाएगा, और क्लोजिंग होगा तो रेड बनेगा, तो रेड हो जाएगा। मीन सिंपली स्टॉक उसका डंडी छोड़ देगा। हाँ, डंडी बनती है हाई और लो से। ये ओपनिंग है सर, यस। ये क्लोजिंग है, ये हाई है, ये लो है, राइट? मगर दिख रहा नहीं सर आपका स्क्रीन, हाँ आपका ही फोटो दिख रहा है। अरे व्हाइट बोर्ड है, आप स्क्रीन करो, व्हाइट बोर्ड इज देयर। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? नहीं। Yes, yes. दिख रहा है सर। हाँ, आपने मेरा स्क्रीन किया है दिख सर, रहा आप है। व्हाइट बोर्ड करिए। तो मेरे को आपसे हाँ, व्हाइट बोर्ड करिए। व्हाइट बोर्ड। हाँ, सबको दिख रहा है सर। तो सर आपको व्हाइट बोर्ड, अभी देखो रेड है, वहां ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग नीचे आएगा। सर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो आप सेटअप करिए कुछ, हाई ऊपर आएगा और लो नीचे आएगा। सर आपने स्क्रीन मेरा सिलेक्ट किया है, वो उसको स्क्रीन पे सिलेक्ट करिए, शेयर्ड स्क्रीन सिलेक्ट करिए। अच्छा ठीक है, अब हो गया। हाँ, राइट ना? इट्स ऑल वो टेक्निकल ना सर, जो भी आप सीख रहे हैं वो भी टेक्निकल है कि हाउ टू डील विद द जूम। बराबर है सर, जूम है। ओके, अभी मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा और पिक्चर क्लियर होगा। अभी चल रहा है गोल्ड, अरे गोल्ड, क्रूड देख लेते हैं, क्रूड, राइट सर? 18 दिसंबर का एक्सपायरी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट सर? अभी देखिए सर, ये कैंडल अभी चल रहा है, उसके ऊपर रखेंगे, देखो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है तो ग्रीन है ना? इधर मैं कर्सर रखता हूं तो राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज दिख जाएगा। ओपन है 3506, लो है 3505 और क्लोजिंग अभी चल रहा है, हाई दिख रहा है 3509। अगर स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाता है तो ग्रीन फॉर्म करेगा, और अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे आता है तो रेड फॉर्म करेगा। अभी अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइम फ्रेम। अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है सर। अभी देखो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा तो रेड हो गया सर वापस, है? और नीचे जाएगा, देखो रेड हो गया। अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जा रहा है इसलिए रेड है, पहले अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर था तो ग्रीन था। मीन सिंपल थिंग इज दैट इफ स्टॉक इज गोइंग बिलो ओपनिंग प्राइस तो रेड फॉर्म करेगा कैंडल, मीन सेलर ज्यादा है। और अगर स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा तो ग्रीन फॉर्म करेगा, मीन्स बायर ज्यादा है। सिंपल, राइट सर? राइट फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन? हेलो? नो कंफ्यूजन, सिंपल एकदम। और अगर मैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना सर, अभी शायद मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा तो एक कैंडल 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, राइट सर? अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जा रहा है तो रेड है, अभी 15 सेकंड के बाद वो खत्म होगी और नई कैंडल फॉर्म होगी।
अभी देखो अपने ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। अभी 3 सेकंड में नई कैंडल फॉर्म होगी क्योंकि 1 मिनट का टाइम। देखो नई कैंडल फॉर्म हुई, पहला ओपनिंग हुआ 3503, उसके नीचे गया तो रेड हो गया। व्हाट द लॉजिक? अभी Yes, sir. उसके Understood. ऊपर जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। क्यों? अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है सर, तो वो ग्रीन हो जाएगा। अभी देखो वही है, तो वो सिंपल अभी कैंडल है। इट्स एज गुड एज कलरलेस कैंडल, नो बॉडी, कोई बॉडी नहीं है। राइट सर? Yeah, sir, speaking about crude, I have a small doubt. Yes. Why were the margins drastically increased even in this segment also? Because of the March drastic my negative closing and all this. मार्च में क्रूड नेगेटिव में चला गया था, उसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज किया गया। Okay, got it, sir. हाँ, अभी देखो क्रूड उसके नीचे जा रहा है अपने ओपनिंग में। अभी देखो वापस दूसरी कैंडल शुरू हुई, क्योंकि हर कैंडल 1 मिनट की है, यानी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। अभी शुरू हुआ है 3503, उसके ऊपर जाएगा तो ग्रीन फॉर्म करेगा, उसके नीचे जाएगा तो रेड फॉर्म करेगा। अभी फ्लैट है। राइट सर? क्लियर सर? कैंडल किस तरह बनती है क्लियर हुआ? मैम क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। Yes, sir. हाँ Clear. और सिंपल सर बता देखो रेड ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है ना? और ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लोजिंग। जब तक कैंडल खत्म ना हो ना सर, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो। अब ये कैंडल अगर समझो नीचे भी तो क्लोज हो सकती है ना? अभी भी सर 7 सेकंड बाकी है। तो वॉट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, जब तक कैंडल खत्म ना हो उसको ऊपर गट फीलिंग मत करो सर। एटलीस्ट लेट हिम फिनिश वॉट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग। अगर 5 मिनट के ऊपर काम कर रहे हो और अगर बेंचमार्क कैंडल है तो उसको क्लोज होने दो, देन ट्रेड। हो सकता है वो बाई का सेल बना दे, सेल का बाई बना दे, हो सकता है ना सर? तो डोंट कैच रनिंग ट्रेन्स, ट्रेन को खड़ी रहने दो। और फिर अभी देखो दूसरा कैंडल ओपन हुआ, 1 मिनट खत्म हो गई तो कैंडल। राइट सर? 10 दिन यही मोमबत्ती आई जलानी है अपने को, बट डिफरेंट वे विद डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, कि ऐसे भी काम होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना टिल नाउ? नो सर डोंट वरी। राइट? अभी देखो ओपनिंग प्राइस के नीचे जा रहा है तो इट्स अभी रेड है, अभी सेलर्स ज्यादा है ना सर? सिंपल है, रेड है तो। उससे पहले ग्रीन था तो बायर्स ज्यादा था। और ये सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम इनिशियली 6 या 7 दिन तक विल ओनली वॉच ऑन हायर टाइम फ्रेम, दैट इज अ डेली। अभी आज क्रूड अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, मींस बायर्स ज्यादा है ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ We're listening, sir. हाँ, और बात करते रहिए, मैं बोर हो जाता हूँ सर। हाँ, आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन। अभी देखो मैं इसके ऊपर कर्सर रख रहा हूँ क्योंकि क्रूड का आज का कैंडल चल रहा है अभी लाइव। अभी मैं निफ्टी दिखा नहीं सकता कि कोई निफ्टी बंद है, 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो अभी मैं इसके ऊपर कर्सर रख रहा हूँ, तो राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर आपको दिख रहा होगा ओपन हाई लो क्लोज, इसको बोलते हैं OHLC। किसी भी कैंडल में ये चारों चीजें होगी, ओपन हाई लो क्लोज, जिसको हम बोलते हैं OHLC इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एनी कैंडल फॉर्मेशन। कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, कितना हाई गया और कितना लो गया। राइट सर? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओपन हाई लो क्लोज में कैंडल किस तरह बनती है उसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. क्योंकि सर वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म टू डील विद द मार्केट विद OHLC। सर हम टेक्निकल एनालिसिस में इतनी हाईफाई चीजों में फंसे पड़े हैं कि सिंपल OHLC से ट्रेड मिलता है, हमारी नजर में आता ही नहीं सर। मैं दिखाऊंगा सर, आप खुद मुझे सवाल पूछेंगे, मैं बोलूंगा अरे यार
ये है तो बाई है, जब तक ये नहीं होता मैं उसको सेल देखूंगा ही नहीं। एंड यू विल एग्री, अरे हाँ सर मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। हम इतना एडवांस हो गए हैं कि बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं सब, राइट। अभी समझ लीजिए आपके सामने OHLC है, ओपन हाई लो क्लोज है, इसमें बायर्स ज्यादा है इसलिए ऊपर गया, इसमें सेलर्स ज्यादा है इसलिए नीचे गया, राइट सर। सर जो चीज अच्छी होगी, जिस चीज की डिमांड होगी, कंपनी अच्छी होगी, उसका स्टॉक ऊपर जाएगा लॉजिकली सर, है ना। और Yes, sir. जिस चीज की डिमांड कम होगी, जिस चीज को बेचने वाले ज्यादा होंगे, वो चीज नीचे आएगी, राइट सर। Yes, sir. सर ये आईफोन है, इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है, फिर भी लोग बाई कर रहे हैं, क्यों? डिमांड ज्यादा है। डिमांड है, क्वालिटी है, वैरायटी है, अपग्रेडेशन है ना। I would say it was considered as a status symbol. That's the reason they were able to sell it like that. सर अगर आप आईफोन लेके घूमते तो क्या सोचा, अरे यार बहुत बढ़िया है, पैसे वाला आदमी है ना सर। Yeah. सर रात को लोग बैठ जाते Also, हैं। I think they were buying the phone for the brand. Most of अरे बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड। not seeing the features, they were buying it for the brand. Seeing the brand, they were buying. ब्रांड कैसे बनी? Yeah, it has to. It has come over time. They have to work hard for it. क्योंकि ब्रांड बनने में भी सर कोई ऐसी चीज कभी ब्रांड नहीं बन सकती जहां क्वालिटी ना हो, है ना सर। बनेगी 2-3 साल चलेगी, बाद में वाइप आउट हो जाएगी। सर आईफोन के लिए लोग रात को बैठ जाते हैं लाइन में, अगर नया मॉडल आता है तो, है ना। There's a craze in brand and demand is there in iPhone. Yes, sir. Yes. और ये क्या है पता है सर? ये चाइना की लाइट्स है। कभी सुना चाइना की लाइट्स महंगी होगी? हाँ, इट कीप डिक्रीजिंग इस प्राइस, क्योंकि उनका सप्लाई ज्यादा है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट बहुत कम रहती है। आप 10 रुपए में कोई चीज, चाइना फेमस ही है। आप 10 रुपए में कोई चीज बेच रहे होंगे, आपके बाजू वाला 9 रुपए में बेच देगा। So the most important thing is the attention to detail they give to each and every process they do in the business, be it the product, marketing, features, staying up to date, and even the software updates. Even the last oldest iPad I have, even I got that update. So the level of customer service, the quality. So they were making sure that once a customer buys a product, they can use it for some time. We cannot say that for each and every product. Right, sir. अभी सिंपल एग्जांपल इज दैट सर, देखो 12 दिन की ट्रेनिंग हमारी, 13 दिन की ट्रेनिंग हमारी खत्म हो गई, बराबर है सर। फिर मैं नॉलेज अपडेट नहीं करूंगा तो क्या होगा? हाँ, without spending sir, market it was a vast. मार्केट इज वेरी डायनेमिक। Yeah. हर रोज आपको नया डायमेंशन दिखाएगा और आपको समझना पड़ेगा। अभी का डायमेंशन क्या है पता है सर? निफ्टी का जो कभी रेयरली सीन है, बहुत रेयरली मिलता है सर। निफ्टी हर रोज सेल कॉल जनरेट करता है और बाय में जाता है। दिस आर न्यू डायमेंशन ऑफ मार्केट सिंस लास्ट 1 month, राइट सर? So you can see how, अभी देखो चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, then you can realize कि सेल कॉल कैसे जनरेट हो रहा है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल में क्या हुआ सर निफ्टी के? एक मिनट, हाँ निफ्टी क्या हो रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स में? So एनी सिंगल पैरामीटर कॉमन इन ऑल दिस कैंडल? यस, लो। क्या कॉमन है? लो। और कुछ? वॉल्यूम कम है। नीचे बॉटम। हाँ, वॉल्यूम तो लगाया ही नहीं मैंने। एक चीज कॉमन है सर, नीचे जाके ऊपर आ जाता है। डंडी यहाँ पे निकली हुई है सर। मैक्सिमम हैमर है, हैमर शेप दिख रहा है। हेलो, मैक्सिमम हैमर से ये हैमर है। bullishness, even though it was coming downside, someone is pulling upward. ये हैमर है। Yeah. ये हैमर है। Yeah. ये हैमर है। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, डंडी जो लो है। Yeah. मींस सेल बनता है फिर भी बाइंग आ जाती है, सेल बनता है फिर भी बाइंग आ जाती है। आज भी वही हुआ सर। Yeah, that was what I was talking about in the morning, sustaining at higher levels. Yes. मींस आप लोग बोलोगे ट्रैप है, फैक्ट है, कभी ऐसा नहीं है सर। मार्केट में, मार्केट इज नेदर ट्रैप नॉर फैक्ट, नॉर फैक्ट। हाँ,
जो चीज समझ में आती है ना सर, वो टेक्निकल कहलाती है ना सर। जो समझ में ना है उसको ट्रैप और फैक बोला है। एक्सेप्ट इट कि मार्केट कभी फैक नहीं है सर। एक्सेप्ट करो कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा सर, और जरूरी भी नहीं है कि हर चीज समझ में आए। दैट्स व्हाई इट्स अ मार्केट एंड सुप्रीम। तो कई बार ट्रेड ना मिले तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। समझ में आए तो, हाँ बोलिए सर, समझ में आए तो ट्रेड कर लो, वरना आराम करो। सिंपल है ना। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही और आप ट्रेड करोगे, यू विल बी ऑन लूजिंग साइड, नॉट अ विनिंग साइड। एक दो बार आपको प्रॉफिट हो भी जाएगा, बट ऑल्सो इट्स अ फ्लुक, यू हैव टेक द चांस, दैट्स ओनली रीजन, राइट सर। तो इट्स नॉट, लेसन नंबर 2, इट्स नॉट मैंडेटरी टू ट्रेड डेली। मैंने शुरुआत में दो तरीके समझाए। वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी सर एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ईपीएस, बहुत सारे उसमें रेशियोज भी है टू जज द स्टॉक्स वैल्यूएशन। टेक्निकल में सिर्फ प्राइस के ऊपर काम होता है कि भाई प्राइस क्या है। तीसरा तरीका है, हाँ, एनी थर्ड वे टू ट्रेड इन दिस मार्केट? हाँ, एनीवन नोज? हाँ, है ना सर। टिप्स, रूमर, न्यूज है ना मार्केट में, ये सब चीजें। I don't think they are reliable because we don't know the authenticity of it. रिलायबल वो तो पता नहीं सर। नहीं, कुछ लोग अच्छी टिप देते हैं कि चलो टारगेट एंटी स्टॉप लॉस, दे आर जेन्युइन, और उनके ट्रेड अच्छे भी होते हैं। बट But it depends upon the people who are executing the trade. yes, We can't blame the tip provider just because he gave the tip. I was in loss, because you have to be in a position to take the trade as well. You yes, need to have a sound understanding. Then only, even to personally feel that even to take a tip from someone, you should have a sound understanding regarding the market. Then only they can trade properly. डेफिनेटली सर, जरूर। जब तक खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला सर। That's why only 2% successful trader in the market, in spite of social media is full of target entry and stop loss. सोशल मीडिया पे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जाइए, ट्विटर पे जाएगा, आपको भरे पड़े हैं टारगेट, ट्रेड, डॉट, टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस, बट स्टिल ओनली 2% सक्सेसफुल ट्रेडर्स। बिकॉज सर सिंपल थिंग इज, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हम ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं सर, है ना। हमारे साथ 3 और लोग होते हैं, टोटल 5 लोग गाड़ी में होते हैं सर, जो 4 व्हीलर सीखने आए हैं। मेंटोर एक ही है, टीचर एक ही है ना सर। वहां वो सबको साथ में लेके जाता है, सबको साथ में समझाता है, सबको साथ में दिखाता है कि व्हाट इज ABC, है ना। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच कब कौन सा दबाना है। लेकिन अगर बाद में सब लोग सीख के बाहर ड्राइव करते, का सब लोग एक जैसा चलाते हैं? हाँ, नहीं। क्यों? It's a lack of practice. लैक ऑफ, बहुत कुछ की प्रैक्टिस कम होगी, कुछ चला रहा होगा कि चलो चलाना है, कोई कुछ जो बहुत अच्छा कौन सा चला होगा पता है, जिसको पैशन हो, चलो मस्त ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, और रूल्स को फॉलो करता हो। जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसका एक्सीडेंट सबसे पहले होगा सर, है ना। मेंटोर ने सिखाया होगा कि भाई अगर यू आर गोइंग फॉर अ राइट साइड, फ्लॉस गो फॉर दिस, हाथ दिखाओ या साइड दिखाओ, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अगर आप रूल्स ही फॉलो नहीं करेंगे, दैट यू विल बी मेट एक्सीडेंट। तो फर्क पड़ जाता है एग्जीक्यूशन में, प्रैक्टिस में, पैशन में, पेशेंस में। बहुत जल्दी होती है कि चलो 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 मैं जल्दी चला जाऊं, पेशेंस नहीं होती और सीधा काट देता है बीच से रोड और एक्सीडेंट हो जाता है सर। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन मार्केट आल्सो सर। मार्केट इज अ डिसिप्लिन गेम, रूल बेस्ड गेम। रूल खुद के होने चाहिए, सामने वाला सिखाएगा, बट उसके बाद रूल्स अपने सेट हो जाते हैं सर, बेस्ड ऑन आवर ओन ट्रेडिंग सेटअप, ओन साइकोलॉजी टू डील विद द मार्केट। डोंट यूज माय एनोनेट्स। हाँ, गॉट द लॉजिक सर। एग्जीक्यूशन मेक्स द डिफरेंस। कोई बोलता है 100 रुपए के ऊपर बाई करो, 95 स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाओ, 110 टारगेट है,
फिर भी कुछ लोगों को कन्विक्शन नहीं होता, 100 के नीचे 97 96 जाता है, वो लोग निकल जाते हैं डर के मारे, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है, ट्रेड तो उसका है ही नहीं, किसी और ने बोला है, और वो स्टॉक वहीं से घूम जाता है और 110 का टारगेट करता है। राइट सर? तो इधर मैटर ऑफ द कन्विक्शन, कन्विक्शन कब आएगा? खुद का प्रैक्टिस होगा, खुद का नॉलेज होगा, देन ओनली वी कैन डील विद द मार्केट। कितना भी कोई अच्छा सिखा ले सर, आप प्रैक्टिस नहीं करो, स्टिल आई एम डूइंग द प्रैक्टिस। हर रोज मैं चार्ट देखता हूं, तभी जाके आंखें सेट होती है कि मार्केट में इस तरह ही बनती है पैटर्न्स। आज मैंने क्या दिया था, 13,400 के नीचे सेल है, उसके ऊपर बाई है सर। आज का लो क्या लगा? हाँ, कितने लोग मेरे टेले, आज का लो क्या था? 400। हाँ, व्हाट इज माय एलओसी? 400। क्यों? उसके बनने से पहले मैंने दिया था ना 400। जब ये 13,400 लो बना, 13,400 वो जब लो बना उससे पहले मैंने तो एलओसी दिया था। क्यों हुआ सर 13,400 एलओसी क्यों थी सर? अभी कोई बताएगा? आपके सामने रीजन, आपके सामने मैं रीजन शेयर कर रहा हूँ। वाइट 13,400 एलओसी था, मैंने लाइन ड्रॉ की है सर। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, and I am sharing today's reason why 13,400 was Sir, before one day, Based on yesterday's close. सर बहुत आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड में। Based on yesterday's close. हाँ, वो yesterday's close यार, I can say gap down theory, gap था सर, it's a gap ना। Yes, sir. तो 13,400 के नीचे सेल था, क्योंकि मार्केट गैप फिल करके उसके नीचे जाता, देन इट वुड बी जनरेशन ऑफ द सेल कॉल, बट उसने गैप फिल किया और वहां से बाउंस लगा दिया सर। तो माय एलओसी वाज राइट ना टुडे आल्सो, है Yes, sir. कोई रॉकेट साइंस है सर? नहीं है ना? No, sir, but I feel we should practice because not everyone could find these points. It will take time. मार्केट बुलिश है सर, Yes, sir. ये चीज हर रोज हो रही है। मार्केट सेल को जनरेट करता है, अपना टारगेट करता है मिनिमल, और फिर बाउंस लगा रहा है। तो अगर आज मार्केट नीचे जाता तो उसका टारगेट क्या था? गैप फिलिंग था, कर लिया और ऊपर आ गया। राइट है ना सर? और दैट्स आई हैव ऑलरेडी सेड टुडे कि भाई मार्केट 13,400 के नीचे जाएगा तभी मैं सेल देखूं। एंड क्लियरली टोल्ड कि 1 बजे बाद ट्रेड करो, क्योंकि 12 से 1 आप लोगों को पता है इट्स अ म्यूटेड आवर्स। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 12 से 1 में होंगे, उनके फेलियर के चांसेस भी उतने ही है। हम बोलो ये टेक्निक एनालिसिस फॉलो नहीं होता, अरे होता है, लेकिन सर आप 12 से 1 में काम करोगे जहां म्यूटेड आवर्स है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वहां आपको सही ट्रेड मिलेगा? तो अवॉइड 12 to 1 ट्रेडिंग टाइम इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर। 12 से 1 में मैं क्या करता हूँ पता है सर? आराम करता हूँ, सिर्फ देखता हूँ कि क्या, देखो मैंने ये ट्रेड लिया होता तो लॉस होता, ये ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट, बस वही करता हूँ। ट्रेड लेता नहीं, सिर्फ देखता हूँ। इन माय एक्सपीरियंस मैं वो करता हूँ ना जैसे उसमें ज्यादातर लॉस ही होता है। जब मुझे पता है 12 से 1 में दुकान के ऊपर ग्राहक ही नहीं होती तो मैं आराम करूंगा ना। देन आई फोकस इन द इवनिंग कि जब ग्राहक बढ़ते हैं शाम को, यही होता है ना सर किसी बिजनेस में। 12 से 1 में लोग आराम करते हैं और शाम को सब अच्छे ग्राहक आते हैं, तब उसके ऊपर फोकस करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। राइट सर? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No. ओके ना मैम? अजीत जी इट्स ओके? ओके, हाँ जी सर। कोई डाउट्स हो तो बताइए, नहीं। otherwise it's a done for today because it's a day 1. I don't want to go for more punches on your face. Right sir? मुझे कोई जल्दी नहीं, it will be relaxed training, maybe 10 days। 10 days तो नहीं खत्म होगा, मुझे पता है। पहले 10 दिन में 2-2.5 साल पहले 10 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, पिछले 1 साल से 12 से 13 दिन होते हैं, और लास्ट ट्रेनिंग वाज 15 days, so I am not in a hurry।
तो आई विल बी विथ यू इन अ वेरी रिलैक्स मूड। और 15 दिन में निफ्टी 15 तरह की चीजें हमको दिखा देगा, वही हमको सीखना है। एनी कंफ्यूजन? राइट सर? No. तो विल मीट यू अगेन टुमारो 9 AM, राइट? 9 AM. सॉरी 9 PM। अच्छा, मुझे इतना पता है कि आप लोग जग रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, अदरवाइज मैंने जानबूझ के गलती नहीं की, बाय डिफॉल्ट हुई थी। राइट सर? Okay, sir. ओके, हेलो Okay, sir. यस सर, बोलिए। सर, कैन यू टेल मी द ग्लेनमार्क फॉर्मा चार्ट टुडे? What your view? अभी देखो, आपने कुछ सीखा नहीं, और अभी क्या आप बोलिए, क्या हुआ सर? मैं बताऊं? हाँ बोलिए सर। सर नीचे लो मार के ऊपर आ गया वापस। हाँ, तो वो क्या कह रहा है, उसका मीनिंग क्या है? मतलब सेलर नीचे नीचे माल नीचे लेकर ऊपर आ गए। मीन्स बायर्स ज्यादा है सर, है ना? हाँ बायर, भले भले रेड कैंडल से, है ना? हाँ मगर बायर ज्यादा है। देखो, लुक कैन बी डिसेप्टिव आल्सो। सफरजन लाल लाल होता है, बट खोलते तो सड़ा हुआ निकल सकता है ना सर? हाँ और व्हाइट और येलो कलर का सफरजन देखते हैं, वो कलर का क्या होगा, और वो भी मीठा निकल सकता है ना सर? यस, तो रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है और ग्रीन कैंडल बेरिश भी हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन OHLC, ओपन हाई लो क्लोज को देखोगे तो आपके 70-80% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि क्या हुआ। दिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सर मेरा 540 का लिया हुआ था, नीचे मेड लो 522। बराबर है सर। और मैं वेट कर रहा था, अभी और मेरा सपोर्ट था 520 का। अभी ग्लेनमार्क का LOC है 540, 512, right? 540 इससे LOC ऑफ ग्लेनमार्क, उसके ऊपर फट जाएगा। So how much? I'm not good with 540 540. एंड डोंट आस्क मी द रीजन, क्योंकि हमने सीखा नहीं है। बराबर है सर। So can I tell something like, it's like after the breakout, you are considering this. Once it comes down that breakout levels, you are considering it, No, not like that. It's a very simple formula, simple thing, but वो हम बाद में सीखेंगे। okay. Day 1 में वो सीख ही नहीं सकते सर, है ना? बट सर 540 के ऊपर चलने से कि सस्टेन करने से? 530, it's a common sense sir. Sustainability is always important than breaching it. सर स्मार्ट मनी चाहता है कि जैसे 540 क्रॉस हम बाय करें और वो तुरंत नीचे आ जाए। सर वो वही तो चाहता है। Agree. हमको सस्टेनेबिलिटी पे काम, that's why only 2% successful trade in the market. Agree. सर मैं LOC देता हूँ, हाँ, फिर भी कितने लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना सर। नहीं वो सर एक्चुअली जो उसको देख रहा है, प्रॉपर कर रहा है, वही कर पाएगा। हाँ, और वो जो प्राइस एक्शन देख रहा है कि भाई चलो 540 के ऊपर गया, ऑलरेडी भागा हुआ है, तो यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आई शुड वेट सम टाइम, और फिर जाता है देन आई शुड बाय ना सर। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट कॉमन सेंस। सच बोल रहा हूँ, इतना कोई हाई मैजिक नहीं चाहिए। कॉमन सेंस है, ज्यादा यूज करना है वहां कॉमन सेंस। गॉट इट सर? या नाउ कीप ऑन रडार 540 फॉर ग्लेनमार्क। सर मेरे रडार पर है ऑलरेडी। बस तो कल अभी देखिए। राइट सर? हाँ ठीक है सर। ये जो आपका पीछे वाला स्क्रीन है, ये क्या यहाँ पे भी हम लोग भी चालू कर सकते हैं क्या? कौन सा स्क्रीन? ये जो आपका खुला हुआ है, इट्स अ टर्मिनल सर, चार्ट्स। तो ये टर्मिनल हम लोग यहाँ खुल सकता है, मतलब लैपटॉप पे? हाँ, मैं इफ आई कैन गिव यू एक्सेस, आप अपना लॉगिन करके खुल सकते हैं सर। अच्छा, मतलब उसके लिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा तब? हाँ वही, या फिर आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए सर। सर वो तो मेरा दूसरा जगह, मगर उसमें इस टाइप का नहीं आता है। हाँ, यू कैन एसोसिएट विद मी इन मोतीलाल के भी सेम चार्ट है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मोतीलाल का भी खुल जाएगा? हाँ, एक ही दिन में खुल जाएगा आप डॉक्यूमेंट्स दोगे तो। मेरा खुला हुआ है सर ऑलरेडी आपके पास। हाँ, तो यूज द चार्ट्स। अच्छा, I have already shared my videos of the demonstration. Okay. Or ping me, I will share you some data. Okay, sure, thank you. Okay sir, तो see you again tomorrow. आप सूरत में कहाँ रहते हो? सूरत बाद में बात करते हैं सर। अच्छा ठीक है। Okay sir. Good night. See you again tomorrow. Good night friends. Yeah. तो 1 दिन का ये पूरा Thank you, sir.